Geography, Standard 6. Dear children, in this video we are going to start the first lesson of our geography, the earth and gratitude. You have been given the world map here. You can see all the oceans and all the 7 continents. You know already which are the 7 continents? Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America, Antarctica. Okay, these are the 7 continents. और यहाँ पर आपको कुछ लोगों के पोजीशंस दिया हुआ है. यहाँ एक लड़का है ग्राहम, ओके, समवॉट अराउंड इन सेंट पीटर्सबर्ग. और यहाँ पर मिचिको नाम का एक लड़की है इन टोक्यो. मीनाक्षी इज इन पोर्ट ब्लेयर, ओके. शाहिद एंड काट्या in Kimberley, Africa. Enrique in Lima, South America. ओके, ऐसा कुछ बच्चों का इमेजेस यहाँ पर दिया हुआ है. Now let's see some questions are there. Which places are shown on the map? In which city is the Taj Mahal located? In which continent is the Taj Mahal located? In which direction is the Taj Mahal located? For Graham in St. Petersburg, for Katya in Kimberley, for Michiko in Tokyo, and Meenakshi in Port Blair. So let's see all these questions answers. First question था क्या क्या places दिखाया है. That is easily already we have seen. बहुत सारे places हमने मैंने read भी किया. And the next one, which city is Taj Mahal located? Taj Mahal कहाँ पर है? See. In which degree, which city it is? It is in the city of Agra, Taj Mahal. Third question is, in which continent is Taj Mahal located? कौन से continent में? It is in the continent of, yes, Asia, Asian continent में. और अभी ताज महल कौन कौन से डायरेक्शन में अलग अलग लोगों के लिए. ओके, लेट्स सी. पहले मिचिको को देखते हैं. अगर मैप के दिस साइड जो होता है दैट इज ईस्ट. ओके, ये साइड में है, इट इज कंसिडर्ड एज वेस्ट. डाउनवर्ड्स इट इज south, and here it is north. इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा राइट साइड में और थोड़ा सा ऊपर इस तरह इधर इतना जगह में, सॉरी, इतना जगह में किधर भी होगा तो वी से दैट इट इज नॉर्थ ईस्ट. ओके, यहाँ पर इतना जगह में किधर भी होगा वी से साउथ ईस्ट. And here in this area we say south west. That means between south and west, southwest. Okay, south and west. यहाँ पर किधर होगा तो we say north west. So इस तरह हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं. तो सभी के लिए देखो, मिचिको के लिए ताजमहल टुवर्ड्स द वेस्ट, सॉरी, मीनाक्षी के लिए लेकिन इस डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, सॉरी नॉर्थ भी नहीं है. ऐसा भी है, ऐसा भी है, बराबर है. तो वेस्ट और नॉर्थ के दोनों के बीच में हो गया तो नॉर्थ वेस्ट हो गया. इस तरह अलग अलग लोगों के लिए ताजमहल का डायरेक्शन अलग अलग होगा क्योंकि दे आर इन डिफरेंट पोजिशंस ऑन द मैप. मैप के अलग अलग पोजिशन में, एंड दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द सिंगल पॉइंट दैट इज आगरा, that is Taj Mahal. So for all these people, Taj Mahal will be in different directions because of their direction. As per their direction, Taj Mahal will be in different directions. The position of Taj Mahal is not changing. The position of these people are changed. They are in different positions, in different locations. So from different locations, if we look at a
particular area, then that area will be in different directions for each of us. Actually, why is this figure and why all these questions are given? Just to make us understand that only direction is not enough to find out a place, yeah, otherwise to locate a place on earth. सिर्फ डायरेक्शन काफ़ी नहीं होता है अर्थ के ऊपर का एक प्लेस को लोकेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ अ प्लेस, हाउ अ पॉइंट या हाउ अ पर्टिकुलर एरिया कैन बी लोकेटेड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर कौन कैसे एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर प्लेस को कैसा लोकेट कर सकते हैं. सो लेट्स रीड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट. Shahid in Agra is specifying the directions in which the others live. How will he express them? In what direction will Natalia in Rome and Enrique in Lima say the other child lives? Will their answers be same? Graham, Katya, Michiko, Natalia, Minakshi, Shahid and Enrique have answered the above questions differently using directions and subdirections. Directions I told you, no, east, west, north and south. Subdirections that also you have already studied, northeast, northwest, southeast and southwest. The Taj Mahal is located at one and the same place, and that is Agra. However, when each one of children told the direction from their respective places, their answers were different. This means that the use of direction alone does not help us to accurately describe the location of a place. That is why it became necessary to find a new system to state the precise location of any place on the earth. So, indirectly, it is explained that we need something else, some new technique, something new to find out the precise, yeah, exact location of a place, of any place on earth. So, let's see what it is. Okay, an activity is given. Observe the globe in your school. You must have seen already globes in your schools. Think about the following questions and then discuss them. There are some vertical and horizontal lines on the globe. Which of these lines are more in number? Second question, what labels do these lines have? What similarities and differences do you see in the labels? And the third question is, will it be possible to actually draw such lines on earth? तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम लेसन में पढ़ने जा ही रहा है. स्टिल व्हाट आर द क्वेश्चंस, लेट्स सी. आप ग्लोब में देखे होंगे देयर आर सो मेनी लाइन्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल? इफ अ लाइन इज ड्रॉन क्रॉस वाइज horizontally, they are called horizontal lines. And if lines are called this type from up to down, from top to bottom, then they are called vertical lines. So many vertical lines and so many horizontal lines you can see on a globe. What are they called? What are their names? What are the horizontal lines called and what are the vertical lines called? And is it possible to draw such lines on the real earth? The answer is readily you can give the answer that it is no. Nobody can draw originally. Nobody can draw lines on earth. Why? Because the earth is very big, one reason, and the earth surface contains maximum ocean water. We cannot draw line on water. And there are so many mountains, so many depressions, and forest. So how can we draw lines over all these things? It's not possible. So for easily drawing lines on earth, we made a replica. The geographers made a replica of earth. That replica is called a globe. ज्योग्राफी स्टडी करने वाले जोग्राफर्स क्या किए, अर्थ का एक नकली इमेज बनाया, नकली रूप बनाया, सेम टू सेम दिखने वाला. दैट इज द ग्लोब. एंड नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन्स ओवर अर्थ indirectly through, means we draw lines on globe and we consider that globe as the earth, and that's why imaginary lines. वो लाइन्स कैसे लाइन्स है? इमेजिनरी लाइन्स, मीन्स दे आर नॉट रियल लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स. Just with the help of those lines on globe, we can find out many things on earth. Okay.
एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ? आप अर्थ के साइज के बारे में क्या सोचे? छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है? जस्ट इमेजिन दैट ऑल द 7 continents, all the oceans, seas, everything is included in earth. That also on the just surface of the earth. ये सभी चीज़ जो बताए अर्थ के ऊपरी भाग में है. इनसाइड द अर्थ वी नो क्या होता है, मिट्टी होती है, रॉक्स होता है, और सेंटर में जाओगे तो एकदम लावा है, उबला हुआ, isn't it? तो ये पूरा जरा इमेजिन करो, then you can imagine the size of the earth. And still the diameter from one end to the other end of the earth, the diameter is given east west diameter. East west diameter means from this west to this east. यहाँ से straight line center से जाओगे, that is the diameter. How much it is? 12,756 kilometers. The east west distance or diameter of our earth is 12,756 kilometers. So since it is a circle, ये एक सर्कल होने की वजह से the other direction, other diameter, that means from north to south, north south diameter, that also will be same? No. That means earth is not in a full circle shape. पूरे एक total real circle के shape में नहीं है earth. क्योंकि north south जो distance है या जो diameter है, it is 12,714. यहाँ से यहाँ तक का distance, that is 12,714, और यहाँ से यहाँ तक का distance 12,715 kilometer. That means this distance is more than this distance. ओके तो इसका मतलब अर्थ जो ऊपर और नीचे से थोड़े से दबे हुए हैं, जस्ट लाइक द शेप ऑफ एन ऑरेंज. एक ऑरेंज का शेप कैसा है? वी कैन सिंपली वी कैन से दैट इट इज राउंड, इट इज स्फेरिकल शेप, बट इट इज नॉट अ करेक्ट स्फीयर. ऊपर और नीचे के हिस्से में थोड़े दबे हुए हैं, एंड द सेंट्रल इज थोड़ा सेंट्रल पोर्शन वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फूगे हुए या फिर बल्ज्ड. ये एरिया थोड़ा बल्ज्ड है और ये एरिया थोड़ा फूगे हुए हैं. Isn't it? Now figure 1.2, which figure it is just now which we have watched. Figure 1.2 shows the length of east west and north south diameters of the earth, as I showed you. This will give you some idea about the size of the earth. Oceanic waters, uneven nature of the land, forest, innumerable islands of different sizes, and buildings make it impossible to actually draw such lines on the earth. This also I explained you. All these factors means oceanic water, uneven nature of the land means somewhere it is depression, somewhere it is like a mountain. Okay, so ऐसा है और forest है, islands है, all these shape or all these factors make it impossible to draw real lines on the earth. In order to overcome this difficulty, geographers developed a miniature model of the earth in the form of a globe. That also I explained. Okay, so geographers क्या बनाया? एक globe बनाया. This can be used to determine locations on the earth. One can actually draw horizontal and vertical lines on a globe though not on the earth. Thus they are imaginary lines on the earth. Up till here we have completed, I think. Now next. Here again we are given a circle, that means it denotes the earth. यहाँ पर भी एक सर्कल दिया हुआ है. ओके, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है. देखो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ दैट सर्कल नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ स्फीयर. यू कैन इमेजिन अ बॉल. एक बॉल है ये जगह में समझो, जिसके अंदर ऑलरेडी स्टफ्स भरे हुए हैं, कोई जैसा स्माइली बॉल वगैरह है समझो. स्माइली बॉल वगैरह के अंदर भी अंदर खाली नहीं है, अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं रहता है, अंदर भी वो जो मटेरियल है भरे हुए हैं. तो ऐसा है बॉल है समझो, इमेजिन करो. और उसके अंदर मतलब अंदर से एक लकड़ी वगैरह कुछ डालकर अंदर का मिडिल पॉइंट हम लेंगे, तो मिडिल पॉइंट से कोई भी एक एंड तक, बॉल के कोई भी एक एंड तक, यहाँ पर आओ या यहाँ पर आओ, बाहर कोई भी पॉइंट तक. ओके, एक स्मॉल एक बॉल लेना है और उसके
इनसाइड में एकदम सेंटर का पोर्शन से ये देखो यहाँ पर बाहर के एक पॉइंट तक एक लाइन खींचा और इसे हम मान रहा है 0 डिग्री. क्या मान रहा है? 0 डिग्री मान रहा है. यू नो डिग्री एंगल वगैरह मेजर किया हुआ है तो एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है. तो ये हो गया 0 डिग्री. सो ये 0 डिग्री का ये लाइन बनाया और इस लाइन से प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रखोगे तो यू नो व्हाट इज प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर यहाँ रखकर यहाँ से आप काउंट कर रहे हो 10 20 30 इस तरह यहाँ पे 30 मिला. तो इस पॉइंट जो अर्थ के ऊपर है वो पॉइंट कौन से डिग्री पे रहेगा? 30 डिग्री. अगर यहाँ पर है तो कितना हो सकता है वो 10 डिग्री हो. यहाँ पर अगर लिया है तो यहाँ से एंगल बनाओ दैट इज अगेन 20 डिग्री बिकॉज ये 10 और ये वाला 20 बराबर. तो ये इसी तरह इसी लाइन को यानी सेंटर में से कोई भी एक एंड में ये 0 डिग्री मान लिया. ओके 0 डिग्री और यहाँ से डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्रोट्रैक्टर को इस तरह रखा उल्टा और उसके बाद यहाँ से हमने काउंट किया मार्किंग किया यहाँ से काउंट करके इधर आया तो 60 डिग्री है समझो. सो दिस एंगल ये जो एंगल है ये एंगल कितना डिग्री मेजर किया? 60. तो ये एंगल पे जो लाइन पॉइंट होगा यानी ये एक बॉल है. जस्ट इमेजिन इतना डिस्टेंस में 0 डिग्री से इतना डिस्टेंस में जहाँ पर भी बॉल के ऊपर का कोई भी प्लेस होगा दैट इज एट 60 डिग्री. तो ये जो डिग्री अर्थ के या ग्लोब के डिग्री मेजर करना मीन्स इट शुड बी फ्रॉम डीप इनसाइड एट द सेंटर ऑफ द बॉल या सेंटर ऑफ द ग्लोब. ये जो एम पॉइंट दिया हुआ है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द ग्लोब. ग्लोब के सेंटर में है. तो इस तरह आप 0 डिग्री से लेकर 0 10 20 30 40 इधर इस तरह आकर ये सभी जगह में और एक एक डिग्री मिलेगा. आप यहाँ तक डिग्री ले सकता है. ये डिग्री कितना होगा? आपने मैथ्स में स्ट्रेट एंगल का नाम पढ़ा है बराबर है. स्ट्रेट एंगल के हिसाब से यहाँ तक आने पे क्या होगा? दिस इज 180 डिग्री. ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा. इन द सेम वे इफ़ यू गो डाउन हम एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट एंगल वगैरह सीखने नहीं जा रहा है. तो ये लाइन यहाँ पर है और ये पूरे यहाँ से डाउनवर्ड काउंट कर रहा है समझो. तो वहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60 इधर 90 आएगा और उसके बाद इससे जाते जाते इधर तक पहुँचोगे तो अगेन वी आर गेटिंग एन अनदर 180 डिग्री बराबर. तो इस तरह हमने इमेजिनरी लाइन से ग्लोब के ऊपर है तो रियल लाइन्स हम बना सकते हैं लेकिन अर्थ में हम रियल लाइन बना नहीं सकते. तो इस तरह हमने अलग अलग एंगल दिया हुआ है और डायरेक्शन वाइज ऑलरेडी मैंने बताया दिस इज ईस्ट बराबर, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो ये बना 0 डिग्री वाला जो है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. व्हाट इट इज कॉल्ड? इक्वेटर. तो इक्वेटर के साउथ साइड, ये साउथ साइड है ना, इक्वेटर के साउथ साइड को कहते हैं सादर्न हेमिस्फीयर यानी इधर से लेकर इतना पूरा पार्ट. ये सिर्फ एक हाफ सर्कल नहीं है, इट्स अ हाफ हेमिस्फीयर. एक बॉल को मिडिल में से आप काटोगे तो कैसा वो शेप होगा? अंदर भी भरे हुए बराबर है. वी कैन ड्रॉ इट समवट लाइक दिस. ओके सो दिस इज one hemisphere that is the southern hemisphere. Southern hemisphere. And upside that is in north side. This much part is another hemisphere that is northern hemisphere. Northern hemisphere. Okay, let's go to the textbook now again. The location of any place on the earth is determined with the reference to the center of the earth. In order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and the center of the earth. At the center, it makes an angle with a plane of equator. The measure of this angle is used in determining the locations. For example, in the figure 1.3, the one which we have seen now, the measure of angle XMW is 30 degree. That is, its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell the angular distance of y from the equator. So let's go back to the figure again. आपको मैंने सब कुछ explain किया यहाँ का. Here there is an angle XMV. What is the measure of that angle? 30 degree. From where? From the center of the earth. From the center means हम actually जहाँ पर रहते हैं that is the
सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर का हिस्सा है, एक बॉल है तो उसके बाहर जो दिखता है वो पार्ट में हम रह रहा है। और इनसाइड द अर्थ या सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब होता है जहाँ पर ज़मीन है वहाँ से नीचे की तरफ खोद कर जाओ मिट्टी के अंदर। और अगर अर्थ वैसा वो खोद कर कोई सरिया बहुत ही बड़ा एक आयरन बार हमने डाल दिया जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से अर्थ के अंदर डाल दिए और अर्थ के दूसरे साइड में वो निकाल पाया, तो उस आयरन बार का मिडिल पोर्शन विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन में आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एनिमेटेड इमेज, एनिमेटेड वीडियो हियर, सो ओके। तो आपका इमेजिनेशन आपको मदद करेगा। एक बड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, अर्थ इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर आउटसाइड ऑफ अर्थ, and if you have got such a big iron bar to penetrate through the earth, अर्थ के अंदर से डाल सकते हैं अगर एक आयरन बार, देन वो आयरन बार एक साइड से डाला एंड इट रीचेस जस्ट रीचेस द अदर साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ थ्रू द इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड द मिडल ऑफ दैट आयरन बार विल बी द मिडल सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो वहाँ से ये मेशर काउंट करते हैं। व्हाट इज द मेशर ऑफ दिस एक्स एम वी? It is 30 degree, isn't it? 30 degree. And now this line shows the 0 degree, that is the equator I told you, isn't it? तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड नाउ टेल मी 30 डिग्री वेयर इट इज, नॉर्थ और साउथ? this angle 30 degree, that means this is the 0 degree line, this line shows the 30 degree, ये line जो है 30 degree दिखाता है। now tell me this position, the position of point n, the position of point x, the position of point x is where? in the northern hemisphere or in the southern hemisphere? It is in the northern hemisphere, so we can say that the point x is in the northern hemisphere at 30 degree from the center, yeah, from the equator. And in the same way, now what is the position of the y, point y on the earth? We can locate the point y by using this degree, 60 degree. From where? From the equator. Okay, and to in which hemisphere, northern or southern? It is in the southern hemisphere, because this is the southern hemisphere. So point y is in the southern hemisphere 60 degree from the equator. And I told you about point x. Now, figure 1.3 shows another plane. It passes through x. It is parallel to the plane of the equator. Observe 1.3 and see how it meets the surface of the earth. Note that it forms a circle on the surface. Any point on this circle and the equatorial plane form an angle of 30 degree at the center of the earth. See, just imagine that in this point we are cutting this earth, okay? Here it is seen like an elliptical shape, a oval shape दिख रहा है. Just imagine that you are cutting a ball, you have a ball in your hand and you are cutting it from the middle, like इस तरह काट रहा है. एक बॉल को अगर काटेंगे तो उसके सामने का पोजीशन, ये वाला एरिया नहीं मैं बोल रही हूँ, यहाँ का एरिया वो कौन से शेप में होंगे? इट विल बी अ सर्कल, इजंट इट? इमेजिन करो आप एक क्या बोलते हैं, आप एक बॉल को, तो आप अगर एक बॉल को इस तरह मिडल से दो हिस्से में काटोगे तो कटा हुआ एरिया इट विल बी अ सर्कल, बराबर है कि नहीं है? वो एक सर्कल होगा. इन द सेम वे यू जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ बॉल, अ रिप्लिका ऑफ अर्थ. मिडिल से आपने निकाला तो हियर यू आर गेटिंग अ प्लेन एरिया, दैट प्लेन, द शेप ऑफ दैट प्लेन एरिया विल बी सर्कल. इन द सेम वे हियर, ये इतना, ये भी एक प्लेन एरिया, अगर आपने ये पोजीशन में काटा दैट ऑल्सो विल बी अ प्लेन एरिया. वो सरफेस जो है जहाँ पे कटे वो एक प्लेन एरिया होगा, बराबर. उस प्लेन एरिया का पूरे सर्कल के एंड, प्लेन एरिया का सर्कल का जो एंड पार्ट है वो एंड पार्ट पूरे क्या शेप में? आपको एक रिंग के शेप में मिलेगा, बराबर है. अंदर का एरिया छोड़ दो, बाहर का जो सर्कल का एरिया है इट विल बी अ रिंग लाइक पार्ट. अर्थ के ऊपर आई विल शो यू अनदर फिगर. यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये एक ग्लोब दिया हुआ है, तो अर्थ का शेप यही होता है, एक बॉल जैसा, ओके. तो यहाँ पर ये एरिया से जो रेड लाइन दिख रहा है दैट इज द इक्वेटर. यहाँ से हमने अगर काटा तो आपको एक कटा हुआ जगह फुल एक रिंग बनेगा, एक रिंग का शेप होंगे,
यानी ये जो लाइन है पूरे घूमकर बैक साइड से इसे आते हैं, ये सभी लाइन में इसका डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और यहाँ पर देखो दूसरा, ये भी ऐसा रिंग जैसा पूरे घूम के आ रहा है पीछे साइड से, बराबर है। तो नेक्स्ट डिग्री देखो ये भी इस तरह अर्थ के ऊपर एक को पैरेलल, देखो सभी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, नेवर दे मीट, कहीं भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल्स, अदरवाइज लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा पैरेलल लाइंस जाता है जो आपस में कभी मिलते नहीं हैं। ऑल दीस आर इमेजिनरी लाइंस ओनली वी कैन ड्रॉ ऑन द ग्लोब एंड मैप, वी कैनॉट ड्रॉ इट ऑन द रियल अर्थ। नाउ यूज फिगर 1.4 फॉर द फॉलोइंग। एक फिगर दिया हुआ है 1.4, आई विल शो यू नाउ। उसके अंदर आपको इतना काम खुद से करनी है। इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर x, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 20 डिग्री v1 x k1। सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर इज x, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 20 डिग्री, वो एंगल का नाम है v1 x k1। ओके, देखते हैं फिगर क्या दिया हुआ है और उसके बाद आगे क्या दिया है, एंड v2 x k2, v2 x k2। नाउ लेट्स सी k1 and k2 being the points on the circle, सर्कल के ऊपर का पॉइंट होना चाहिए। ड्रॉ एन एलिप्स joining k1 and k2 in the upper portion of the circle। एक सर्कल हमें दिया हुआ है, लेट्स सी द सर्कल नाउ। ये देखो ये है आपका दिया हुआ सर्कल, x is the center of the circle, v1 you have, v2 you have, okay, and 20 degree you have to take from the circle। See, I'm taking 20 degree here, this is 20 degree, means imaginarily, okay, 20 degree suppose, and here you give the name k1, and in the same way on the opposite direction again 20 degree you take here on the other side, okay, towards v2, that will be k2। ये क्या बनेगा, k2। now ये एंगल v1x, इधर x था वो उसके ऊपर लाइन आ गया, v1x k1 that is 20 degree, v2x k2 that is 20 degree again, okay। now you do k and k1, इन दोनों को यहाँ से मिलाकर एक एलिप्स बनाओ, okay, I'll show it again। हमने सर्कल के अपर पोर्शन में ऊपर की तरफ बताया है, इसलिए दोनों एंगल ऊपर बनाया मैंने। एट द सेंटर x के उधर से 20 डिग्री एंगल v1 x k1 अभी मैंने बना के दिखाया आपको, v2 x k2 another one that also we have drawn, k1 and k2 being points on the circle, k1 k2 will be on the circle and we have to draw an ellipse joining k1 and k2। is it clear? एक ellipse बनाने का k1 और k2 को जोड़कर, okay, again we are coming here, यहाँ पर 20 डिग्री I drew, that 20 degree I made it is, and k, this point is k1, here again another 20 degree that is k2, okay। now joining this k1 and k2 you make an ellipse, एक एलिप्स बनाए, एलिप्स समझते हो ना, ये जो नीचे बनाया हुआ इस तरह। एलिप्स बनाने के बाद यहाँ से समझो हमने अगर ये सर्कल को काटा तो यहाँ पर जो लाइंस बनेंगे वो भी पूरा सर्कल को घूम के आएगा, यानी दैट विल अनदर रिंग, ओके। In the lower half of the circle, mark angles of 60 degree and name the points on the circle P1 and P2. Draw the ellipse joining P2. So that also we have to do now. Once again we are starting one angle, just a minute. One angle here, one angle here, 20 degree each, K1, K2 and the ellipse. Okay. And another angle 60 degree is given towards the lower side. So 60 degree and P1, another 60 degree, sorry, that also is 60 degree P2. And joining these 2 points, draw another ellipse. So here we are getting two ellipses. One here at a 20 degree and one here at a 60 degree. Okay. And now the question is, are the distances between K1, K2 and P1, P2 same? Don't, not ना, because K1, K2 हमने 20 डिग्री में बनाया जो इक्वेटर के नज़दीक है, तो उन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है। और आप
P1 P2 का डिस्टेंस देखोगे दोनों के बीच में, तो वो 60 डिग्री में और बहुत नीचे चला गया, तो उधर डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब जो इलिप्सिस हमने बनाया दोनों का साइज अलग अलग है। K1 K2 को जोड़कर जो बनाया दैट वाज बिगर, P1 P2 को जो जोड़कर बनाया था दैट इज स्मॉलर। यू कैन सी हियर K1 करीब इधर इधर मिला था, तो वो इलिप्स इतना बड़ा है, और P1 P2 हमें इधर मिला क्योंकि यहाँ से 60 डिग्री बड़ा डिग्री बन रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है इतना ही है। ये इलिप्स छोटा है और इधर जो मिला था वो इलिप्स बड़ा है। यानी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, या ये पैरेलल जितने भी हम बनाते हैं इलिप्सेस, ये पूरे के लेंथ में फ़र्क होता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा ये जो सामने है, कौन सा है? इक्वेटर से जोड़ने वाले, इक्वेटर का दो एंड पॉइंट से जोड़ने वाले जो इलिप्स है दैट विल बी द बिगेस्ट वन। दैट मीन्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में सबसे बड़ा होता है इक्वेटर। Now, parallels of latitude. You must have realized that the ellipse drawn by joining 20-degree point is larger than the ellipse that joins the 60-degree points. However, the distances xk1 and xp1 are the same. This is because we are dealing with a sphere. Here it is said that xk1 and xp2, k1 and p2, x से लेकर k1, x से लेकर p2 are the same because they are the radii of the circle. Okay, let's see again. Here was the position of k, xk1, xk1, and here was the position of p, suppose, so xp1, p1. 2 minutes. ये k1 और ये p1. ओके, तो यहाँ x से k1 तक और x से p1 तक का डिस्टेंस इक्वल ही है क्योंकि इट इज़ द रेडियस, सर्कुलर है, इट्स अ स्फीयर, तो उधर का हर एक पॉइंट में उसका रेडियस सेम ही होगा. Note that though these lines appear to be ellipses in the diagram, on the globe they are circle. मैंने आपको बताया ये डायग्राम में हम सर्कल जैसा बना नहीं सकते, एक साइड से घूमकर दूसरा, बिकॉज इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर. बराबर है, तो पेपर में जो बनाते हैं 2 डायमेंशनल है, रियल में ग्लोब मीन्स इट इज़ 3 डायमेंशनल. वी कैन सी द थिकनेस ऑल्सो, बैक साइड सब देख सकते हैं. तो जब ग्लोब में बनाओगे तो these circles are, these lines are circles, not ellipses. The circles that thus created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another, hence they are called parallels of these latitudes. The values of parallels are angular measures expressed in degrees. तो इस तरह ग्लोब के ऊपर बहुत सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है. ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का मेशर या उसका वैल्यू एंगल्स का डिग्री में, एंगुलर मेशर में 0 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरह डिग्री में मेशर करते हैं. The degrees of parallels are measured from the equator. ये किधर से स्टार्ट होता है इसका मेजर करना? इक्वेटर से. दैट इज व्हाई द इक्वेटर इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री पैरेलल. इट इज द लार्जेस्ट पैरेलल एंड आल्सो अ ग्रेट सर्कल. The angular distance of other parallels towards north and south goes on increasing away from the equator. इक्वेटर से आगे जाते जाते, जैसे अभी यहाँ पर ये जो इक्वेटर है ये फुल राउंड ऐसा जा रहा है, इसका डिग्री 0 है, देखो यहाँ पर दिया है. कैन यू सी द डिग्री ऑफ इक्वेटर? इट इज रिटन हियर. और ऊपर दूसरा नेक्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आ रहा है, दैट इज 10 डिग्री. नेक्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आ रहा है 20 डिग्री. डोंट थिंक दैट और ये इसके बीच में और कोई नहीं है. 1 डिग्री, 2 डिग्री सभी है. ओके, और उसके पीछे अनदर 30 डिग्री और उसके ऊपर और 40 डिग्री. लेकिन जैसे जैसे ये जाता है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये सर्कल का जो लेंथ है कम होते जाएगा, छोटे छोटे सर्कल में बनते जाएगा. बराबर है, ये जो सर्कल का साइज है छोटे छोटे होते जाएंगे. लेंथ छोटे छोटे होते जाएंगे लेकिन उनका मेशर बढ़ते बढ़ते जाएंगे. बराबर है, 0 फिर 10, 20, 30, 40 इस तरह जाएगा लास्ट 90 डिग्री तक. इसी तरह डाउनवर्ड यानी टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर जाओगे तभी भी डिग्री बढ़ते बढ़ते जाएंगे. The angular measure increases but the size of the circles are decreasing. Okay, here one another figure is given. See this one, सेंटर सर्कल का यानी अर्थ का एकदम सेंटर पार्ट दिया हुआ है, वहाँ से एक एक मेजर किया हुआ है, वो भी आपको इधर क्लियरली दिया हुआ है. बराबर, ये जो लाइन है ये पूरा 0 डिग्री का, और यहाँ से जो आएगा ये 10 डिग्री का, ये 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, इस तरह. Towards the southern side also the same thing. Now
In the equator bisects the earth into north and south parts. The one to the north is called the northern hemisphere, while the one to the south is called a southern hemisphere. This I told you. If you imagine you are dividing earth from the center through the equator, you are cutting the earth through the equator, you will get two half spheres. One hemisphere at the top side and the northern side, and one hemisphere towards the southern side. So the one hemisphere which is towards the southern side is southern hemisphere, and the one which is towards the northern side is northern hemisphere. That means equator divides the earth into two hemispheres, northern and southern. Towards the that is over on the globe, that means on the earth also, at the north and the south ends on the earth's axis, they are as points, they appear as points. These are called the north pole and the south pole respectively. See, as we go towards the northern side से जाओगे, देखो 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह जाते जाते यू कैन सी ये एक सर्कल है, वो भी ओके है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट देता है, दिख रहा है, जो 90 डिग्री वाला है। ये 90 डिग्री पे आपको जस्ट एक मियर पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ पर 90 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर देखो, तो वो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इट बिकम्स जस्ट अ पॉइंट। इन द सेम वे सदर्न साइड में भी जाओगे तो जो 90 डिग्री होगा एकदम लास्ट में, वो भी जस्ट एक पॉइंट होगा। एंड दिस फर्स्ट पॉइंट, द नॉर्थर्न पॉइंट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द सदर्न दैट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। Now, while mentioning the value of a parallel, it is necessary to mention whether it is northern or southern hemisphere. The parallels from northern hemisphere are referred to as 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas the parallels from the southern hemisphere are referred to as 5 degree south, 15 degree south, 30 degree south, 50 degree south. That means while telling about parallels of latitude, you have to tell in which hemisphere it is. Because 15, suppose I am talking about the 15 degree parallel of latitude. So if I merely say, if I just say that that so and so place is at 50 degree, 15 degree. So the person who hears cannot understand 15 degree where, because there are two 15 degrees. One is in the northern hemisphere and one is in the southern hemisphere. So while telling the parallels of latitude, you have to tell the degree as well as on which hemisphere it is. That also you have to say. That's why it is written as 5 degree north or south. So that is very important to represent by north or south. A line joining all the places located to the north of the equator at an angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra or Lhasa in Asia are all located on 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. अभी सपोज समझो इधर कुछ एरियाज दिए हैं, तो न्यू ऑर्लियंस नॉर्थ अमेरिका का और अफ्रीका का कायरो, एशिया का ल्हासा वगैरह सब 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल में है। तो हमें देखो इससे ये एक बात पता चलता है कि अगर आपको नॉर्थ या कोई भी पैरेलल एक लैटिट्यूड का डिग्री मिलने से प्रॉपरली एक जगह को हम लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ में बहुत सारे एरिया आते हैं ऑल राउंड ऑफ अर्थ के पूरे राउंड में पूरे 1 लैटिट्यूड होता है 1 डिग्री के। तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है देखने के लिए लैटिट्यूड के साथ हमको ऊपर से नीचे का दूसरा और एक मेजरमेंट भी चाहिए। उसको आगे हम पढ़ने वाला है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको। तो लैटिट्यूड के साथ साथ हमें लॉन्गिट्यूड ही साथ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में काफ़ी बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, बहुत सारे प्लेसेस आते हैं। सो इस तरह कितने पैरेलल्स हम बना सकते हैं। अभी जो इमेज फिगर हमने देखा था वो फिगर के हिसाब से, लेट्स सी द फिगर अगेन। ये जो इमेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर, ओके 0 डिग्री वाले, और उसके बाद यहाँ पर टुवर्ड्स द सदर्न साइड कितने हैं, पूरे 90 है, ये 10 है, पर उसके बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री पूरे हैं। तो कितने डिग्री, कितने लाइन्स होंगे यहाँ तक 90 डिग्री, 90 लाइन्स ऊपर की तरफ, 90 पैरेलल लाइन्स ऊपर की तरफ, एक डिग्री का एक लाइन। और टुवर्ड्स द साउथ साइड भी कितने पैरेलल्स,
90 पैरेलल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 पैरेलल्स नीचे तरफ। आपको यहाँ पर ये फिगर में इतने पैरेलल्स लिखोगे तो पूरे मेसअप हो जाएंगे, कुछ दिखेगा नहीं। इसके लिए 10-10 का गैप में आपको इधर डिग्री दिया हुआ है, लेकिन हर एक डिग्री के बीच में और भी मेशर्स है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री वो भी है, और उसके अलावा वही डिग्री से भी छोटा मेशर्स भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ भी 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड इन द मिडिल 0, दैट इज इक्वेटर। टोटल कितने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो गया? 90 प्लस 90, 180 प्लस दिस 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बन गया टोटल। सो we can draw, yeah, one can draw 181 parallels on the earth at the interval of 1 degree. At 0 degree, that is equator, then 90 parallels in the northern hemisphere, 1 degree north से लेके 90 degree north तक, और 90 parallels in the southern hemisphere, that is 1 degree south से 90 degree south तक. Is it clear now? Now we have to study about the longitudes. लॉन्गिट्यूड्स मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाले लाइंस। जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड था इक्वेटर की पैरेलल, इन द सेम वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे, वैसा भी कुछ इमेजिनरी लाइंस बने हुए, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये लॉन्गिट्यूड्स का स्टडीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? बाय।